ଧର ତମର ଗୋଟେ ଏବେ ମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ୍ ହୁଏ ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ଗୋଟେ ନିଜର କିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ତମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କ'ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ କ'ଣ କେମିତି ଲ ଅଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଟେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ମେନ୍ ଟେନସନ୍ ତ ଆଉ ଏଇ ଜବ୍ ଫବ୍ ଲକ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କର ମେନ୍ସ ଦେଇକି ବି ହେଉନି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇକି କଟିକି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବ ଆଫ୍ଟର ଫେଲୁଅର୍ ମାନେ 9 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ସବୁ ଦେଇକି ମାନେ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ସେ କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ କିଛି ନାହିଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ତୁମ କାମ ବି କର ଯୋଉ ତୁମର ଯାହା ସେସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଥା ମାନେ ଚାଲିଥାଉ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯଦି କିଛି ବି ନହେଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବେଶୀ ତା ଉପରେ ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ କହିବେ ବି ସେ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲ ନୁହେଁ ଏଠି ପାଠ କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା କି ପୁରା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯିବା 6 ବର୍ଷ କିଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ନ କରିବା ଖାଲି ତା ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିବା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଆଉ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ନେଉଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯଦି ପଇସା ଦେଖୁଛ ତ SICଟା ଆସିଲା ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇଥିଲେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ କରିକି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ତୁମର ପଢ଼ା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ରୁହ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳିଯିବ ସେ ପଢ଼ା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛି ବାହାରକୁ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି ତଥାପି ପିଲା ପୁଣି ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିବ 2 4 ଜଣ 5 ଜଣ 7 ଜଣ 8 ଜଣ ଛାଡ଼ ବଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତା ସହିତ ପିଲା ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼। ଆଜି ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଠୁ ନେଇକି 19 ଯାଏଁ ପୁରା ଡିଟେଲି ଦେଖିବା କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ୍ 12 ଆଉ 13। ଆର୍ଟିକଲ୍ 12 ତୁମକୁ କହୁଛି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡେଫିନିସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ କେସ୍ ହେଉଛି ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କିଏ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଆକୁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଭାବରେ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ କରିପାରିବି ବଟ୍ ଏମିତି କିଛି କିଛି କେସ୍ରେ ସେସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଗଲା କି ନା ତମେ ବି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପାର୍ଟ ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 12 ୱାଇଜ୍ ତମେ ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛ ଯାହା ବି କେସ୍ ଆସିବ ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ତମେ କଲ କିଛି କେସ୍ରେ ତ ତମ ଉପରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 12କୁ ମାନେ ତମେ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରୁଛ ବୋଲି ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 13 ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 13 ତୁମକୁ କହୁଛି ଅଧିକା ବିଷୟରେ କି ଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ତ ବ୍ରଡ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ୍ 13ରୁ ତୁମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁର ପାୱାର ଦେଉଛି କିଏ ତୁମକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଗରୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁର ପାୱାର ନଥିଲା ଯେଉଁଠିକି USରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ପାର୍ଟ ସେ ସବୁ କେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆଜ୍ ଏ ପରେ ଆସିଲା ଆମର କେଉଁଠି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇନି କି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଅଣ୍ଡର 13 ବଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ 13ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାୱାର ଦେଉଛି ତୋର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଆଉ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁ ତୋର ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି କେଉଁଠି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରେ ଆଉ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ ତାକୁ କିଏ ସେଟ୍ କରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛି କି ଲର ପାୱାର ମାନେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମାନେ ଏମିତିଆ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ବୋଲେ କହିଦେଲେ ସେ କି ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍କୁ ତୁମେ ଛେଡ଼ଛାଡ଼ କରିବ ନାହିଁ ତୁମର ଯେକୌଣସି ଲ ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବ ମାନେ ଆଗକୁ ଯଦି ଏମିତି ବି କିଛି କେସ୍ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି କିଛି ଚାର୍ଜ ଆସୁଥିବ ତ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ କହିଦେବ କି ଏଇଟା ଆମର ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାର୍ଟ ତ ଏଠି ମୁଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ରିଭ୍ୟୁର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଦେଇପାରିବି ତ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 4 କହୁଛି ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଓର୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଦେଖ ଏନ୍ସିଓର୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14 ତୁମକୁ କହୁଛି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଖାଲି ଆମ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଲେଖା ହେଇଛି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆକୁ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆକୁ ଯେଉଁ ଡାର୍ସି ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଲ ଦେଇଥିଲେ କି ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ତାଙ୍କର 3ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ଡାର୍ସିଙ୍କର ସେଇଠୁ ଏସବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇକି ଆଇଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇକ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ହେଇଛି କି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖିବା ଦରକାର କି ଆର୍ଟିକଲ୍ 14ର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 14ରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଅଛି ଏନ୍ସିଓର୍ସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ କୁହ କି ତୁମର ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଭର୍ସେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଲେଖ କି ତୁମର ଜଷ୍ଟିଫାଏ କର ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା। ଦେଖ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ମାନେ ସିଏ ଆଗେ ଦେଖିବେ ମାନେ ସେ କହୁଛି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ମାନେ ଆଇନ ନଜରରେ ସବୁ ସମାନ ବଡ଼ ସାନ ମାନେ ଅମିର ଗରିବ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ଯଦି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସଜା ଦେବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲକୁ ମାନେ ଲ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ତାପରେ ଲ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ କରିବି ତାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ କେମିତି କହିବି କି ଧର 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି
ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଧନୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି। ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେମ୍ କେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, କେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ ବଟ୍ କେସ୍ ତାଙ୍କର ସେମ୍, ଲୋକ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ୍ ବି ଅଲଗା। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ଲୋକଙ୍କ କଥା ତମକୁ କହିଲି ଯାହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆବିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ଏଠି ଦେଖାହେବନି ତମେ କିଏ, ଏଠି ଓନ୍ଲି ଦେଖାହେବ କି ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ଯେଉଁ ଲଟା ଆଗରୁ ହେଇକି ଅଛି ସେ ଲଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଲ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେମ୍ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ, ଆକୁ ବି 10,000 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 ଲାଗିବ। ଫାଇନ୍ ସବୁଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଲାଗିବ। ସିଏ ତମର କହୁଛି କି ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଦ ଲ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲିଟି ତାପରେ ଲ। ବଟ୍ ତମର ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ମିନିଂ ହେଉଛି कि ମୁଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ରାଇଟ୍ ଦେବି। ହୁଏତ ଇଏ ଯେଉଁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛି ଆ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନଥିବ, କି ହୁଏତ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ତୁ ଗରିବ ତୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ତୁ ଧନୀ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେ। ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠି ଲଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ, ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖୁଛି କି ଲୋକଙ୍କର ଇକ୍ୱାଲିଟିଠୁ ବେଶୀ ତାର କଣ୍ଡିସନ୍। ମାନେ ଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲଟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଯାହା ଉପରେ ସିଏ କେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ। ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲିଟିକୁ ଦେଖିବି, ତୁ ସାନ ବଡ଼ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ, ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି। ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ ଇଜ୍ ଏ ପଜିଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓମେନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, କି ଯାହା ବି ହେଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ଇଏ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 15ରେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିବା କି ଆମର ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଭାରତୀୟ। ବଟ୍ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ ସବକ୍ଲସ୍ ବି ଅଛି, ଯେମିତି କେଉଁଠିକି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଧର ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କାହାକୁ ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ତୁମର ଲ, ହେଲା ତୁମର ଲ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ଏ ଲ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଠୁ ଯିଏ ତୁମର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ତୁମେ କାହାକୁ କରୁଛ ମାନେ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ପକାଉଛ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ଏବେ ଆଇଲା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସି ଗାଉଛି ଖାଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ତୁମର ଦୁଇଟା ଗଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲ। ତୁମେ ଜାଣିଲ କି ଲ କ'ଣ, ଆର୍ଟିକଲ 14 ଅଣ୍ଡର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ନୋ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ବାଇ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍। ଷ୍ଟେଟ୍ ତୁମ ଉପରେ କିଛି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର କିଛି ମାନେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କଠୁ ତୁମେ ଯଦି କିଛି ପଛରେ ଅଛ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ଦେଖିବ, ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିଦେବ, ତୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଛି ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ତୋ କଥା, ସେ କଥା ବୁଝ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଡେମୋକ୍ରେସି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଆସିଲା, ଦି ଆର୍ବିଟ୍ରାରିନେସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋହିବିସନ୍। ଆର୍ବିଟ୍ରାରି ତୁମେ କେଉଁ କେସ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ରିଜନେବଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଇଜ୍ ଆଲାଉଡ୍। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ରିଜନେବଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କାହାର ନା ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଲର। ବଟ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ବିଫୋର୍ ଲ ହେଲେ ତୁମର ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲ ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଟ୍ ଆମେ ରିଜନେବଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠି ଏକା ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସବୁଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି କେତେଟା କେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆର୍ଟିକଲ 14ର କିଛି କେସ୍କୁ ଯିବା। ତୁମ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ରୁ, ତୁମ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସାଇଟ୍ଟା ନା ଦେଖି ଦେଉଛି, ସେଇ ସାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଭଲ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇଠୁ ଦେଖିଦେବ, ଆର୍ଟିକଲ 14। अच्छा तो लिखित से इक्वालिटी बिफोर द लॉ कौन द पार्ट ऑफ द आर्टिकल इंडिकेट्स दैट ऑल आर टू बी ट्रीटेड इक्वली इन द आई ऑफ लॉ बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कौन दिस पार्ट मीन्स द सेम लॉ विल बी अप्लाइड टू द ऑल पीपल इक्वली अक्रॉस द सोसाइटी दिस पार्ट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एज इट एक्सपेक्ट्स ए पॉजिटिव एक्शन फ्रॉम द स्टेट जहाँ को जहाँ दरकार ताको सैया दियो दिस इज ए प्रोसीजुअल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 14 प्रोसीजर कौटी लगिला कारण मु लटाको सेमती आखि बुझिकी आप्लाय कलिनी मु ताको प्रोसीजर देखिली आगे ये ठीक कि ये भूल कि दैट इज द प्रोसीजर ये बहुत सारा केस भी अच्छे जेन तुम गोटे केस अच्छी द रिसेंट जस्टिस सुभा राव इन द स्टेट ऑफ द यूपी वर्सेस द ड्योमान उपाध्याय इन 1960 stated that the article 14 comprises both positive content as well as negative content whereas equality before the law is a negative content the equal protection of the law exhibit a positive content of the article 14 तो ये जो आमर है पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सेप्ट डिमार्केशन ये सब स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस ड्योमान उपाध्याय इन 1960
ये सब तुम प्रिलिम्स में जब बेस इंपोर्टाट नथिबो भी आगो तुम मेन्स रो पॉइंट रे सब माने ऐड करि पारिबो ताकर ये गुडा केसेस गुडा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस डीओमन उपाध्याय एटी कोन हेतला पॉजिटिव कंटेंट और नेगेटिव कंटेंट हमर दीटा जंग आसिले अलग अलग हाई देन द डॉक्ट्रिन ऑफ द एंटी आर्बिट्रेरीनेस the scope of the article 14 was drastically increased by the supreme court by including the executive discretion under it ambit and it is the case of the EP Royappa versus state of Tamil Nadu in 1974. It is a कौन कहला now the court said that article 4 gives a guarantee against the arbitrary action of the state जदि state रो किछ arbitrary actions तुम ऊपर होउची तुमको तापर आर्टिकल 14 ग्यारंटी दबो कि तुमर इक्वालिटी विषय आम इंडियंस आम समस्त इक्वाल जिनस हवा दरकार तो द राइट टू इक्वालिटी इज एग्नेस्ट दि आर्बिट्रेरीनेस राइट टू इक्वालिटी इज एग्नेस्ट दि आर्बिट्रेरीनेस माने तुम स्टेट पूरा तुम उपर आर्बिट्रेरी है कि किसी काम कर पारिबो नाही तुमर भी किछ हक अछि तुमर भी किछ इक्वालिटी अछि तो पूरा आर्बिट्रेरी है कि स्टेट जनक उपर जणे काम एमती काम करि पारिबो नाही ता पय आर्टिकल 14 अछि जोटी कि हमर आगुरु डिमन उपाध्याय केस रे कैटेगराइजेशन हे जाय छि कि पॉजिटिव और नेगेटिव कांसेप्ट बोथ अछि बट जोटा जो टाइम रे दरकार आमे सेई टाइम रे सेटा अप्लाई करिवा तापर केस अछि कौन आउ जो एस जी जे सिंघानी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया इट कौन होता द कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हेल्ड द absence of the arbitrary power okay and the rule of law with confined and defined description both of which are essential based of the article 14 in here justice Subha Rao elaborated on the wide expansion of the article 14 via the chada so कौन बेकार जिनसो ଏଠି ଖାଲି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏଠି ତୁମର ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ବିଟାରୀ ପାୱାର ହେଲା ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆର୍ବିଟାରୀ ପାୱାରକୁ ଟୋଟାଲ ଆବସେନ୍ସ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଏସ୍ ଜି ଜେ ସିଂଘାନୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ मेनका गांधी केस दैट इज इंपोर्टेंट कि मेनका गांधी केस रे कौन होता मेनका गांधी केस तुम 1708 रे होता जस्टिस भागवती सेड दैट इक्वालिटी इज एग्नेस्ट दी आर्बिट्रेरीनेस ऑफ दी स्टेट एक्शन ऑफकोर्स जदि गोटे स्टेट किसी जिनस करने चाहूँ आर्बिट्रेरी माने सी शुणवनी है तो ये तुम इक्वालिटी पूरा एग्नेस्ट जाऊँगी जोटा कि तुम मेनका गांधी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1978 रे आसला सो दिस डॉक्ट्रिन एनश्योर्स इक्वालिटी इक्वल ऑफ द ट्रीटमेंट the seven judge bench held that a trinity exists before article 14 19 and article 21 all the articles have been read together ए फर्स्ट टाइम पे आर्टिकल 14 19 21 को गोटे 7 जणिया बेंच कारण सब हाईएस्ट बेंच हमर बसथिले कोठी सावन केस जो तुम कहि परिबो जो 12 जज बेंच तमर आस्थिला केशपानंद भारती केस रे बहुत बड़ बेंच बसथिला जो तमर जो डॉक्ट्रिन सब आस्थिला बेसिक डॉक्ट्रिन हला जुडिशियल रिव्यू हला एट तमर 12 खंडे जज माने बड़ बेंच बसला तापर ये 7 नंबर माने 7 जणिया बेंच एटी टोटल 14 19 21 को मिसे देखिले कि एक्चुअली भूल कोठी अछि all these articles have been read together and any law interfered with the personal liberty of a person must satisfy a triple test it must interfering with the personal liberty it must prescribe a procedure the procedure must withstand the test of one or more the fundamental right conferred under the article 19 which may be applicable in a given situation and it must also be liable to be tested with the reference to the article 14 ए मेनका गांधी केस टू तुम कौन होता कहल जो तुम जो आर्टिकल 21 ने आड होता द लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी माने मोर इज्जत अच्छी भाई तुम्हें जदि तुम किसी खर्च मैंने धर ना कि एथि एत सारा जिन देखा जाता ना एटा गोटे पब्लिक केस कथा आसी तुम आर्टिकल 19 रतिक क्लज अच्छे कौन लिखला ये से लिखला कि सेकेंड पॉइंट देख द प्रोसीजर मस्ट विथस्टैंड द टेस्ट ऑफ द वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड अंडर द आर्टिकल 19 माने तुमको जदि किसी गोटे धर तुम आर्टिकल 19 रे किसी गोटे केस है तुम सब आर्टिकल से तार क्लज बाय क्लज देखियो तुम कौटी भूल अच्छी कि कौटी ना जदि भी भूल अच्छी तुमको जो आरेस्ट कराऊँगी से आरेस्ट पे तुम प्रोसीजर ठीक फॉलो हो तो से जो तुम आर्टिकल 20 आसे प्रोसीजर एस्टाब्लीश बाय द लॉ प्रोसीजर सब जहाँ जहाँ प्रोसीजर सब ये लिखाई तो मुझे केमी जी कौन करी मेनका गांधी केसटा देखिए एटा बहुत इंपोर्टेंट केसटा कारण जो एटा बोधे से जो आई कार्ड वगैरह नहीं जाते से केस देते कि केमती से मोर रखिदेव बोली मोर कौन किसी लिबर्टी ना ये ना से केस आसाला केस आसिकी सब माने आर्टिकल 14 19 21 एकात्र स्टडी है कि यहाँ ये जिनस गुड़ा एमती हम तुम लाइफ मैंने फास्ट टाइम आर्टिकल 21 को लिबर्टी आड है अच्छा नेचुरल जस्टिस कौन as a part of the article 14 from the AK कौन था ना क्राइपैक वर्सेस
Union of the India, it evident that the natural justice is a technical terminology for the rule against the bias and the right to unfair hearing. এই ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ନାଁଟା ଅଡ଼ି ଆଲ୍ଟେରାମ୍ ପ୍ୟାଟମ୍ ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମୋତେ ପାଠରେ ପଶିନି ସେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆର୍ଟିକଲ୍ 20 ଅଣ୍ଡରରେ ବି ବହୁତ 3-4ଟା ନାଁ ଅଛି ସେ କେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 00 ଏଠି ତ ଶୁଣି ମନେ ରହିଲାନି ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିବ The natural justice is a technical terminology for the rule against bias and the right to fair hearing. And it is an integral part of the Article 14. माने right to fair hearing. But right to fair hearing भी गोटे तमरो fundamental right. जब तमर आसीबो कि right to fair hearing केते नंबर आर्टिकल पावर दिए कि केते नंबर आर्टिकल अंडर एसो जाउची तो ये सब टेक्निकल टर्म आपको तो मन रखिया पड़िबो कि तमरो राइट टू फेयर हियरिंग तमर आर्टिकल नंबर 14 अंडर रे जाउची आर्टिकल नंबर 14 अंडर रे तमे जदी तुमको हियरिंग पाई राइट्स दिया होउनी तो तमे एटा तम फंडामेंटल राइट्स तमे केस करी पारिबो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट रे नॉट इन अपीलेट कोर्ट अच्छा तापर इंद्रस्वानी केस इंद्रस्वानी एटे दुटा केस इंपोर्टेंट तमर तीनटा केस उपाध्याय केस तमर मेनका गांधी केस और तमर इंदिरा स्वानी केस ऑफ 1993 which is a landmark judgment on the aspect of reservation in the India. The court interpreted the relation between Article 14 and the 16. It was held that Article 61 is a facet of Article 14. Just Article 14 permits reasonable classification, so does Article 61 be correct. A classification may involve the reservation of the seat or the vacancies. एबे जो तमर कोटा सिस्टम दिया होछि से कहूछि कि तमर आर्टिकल 14 रे जो बेले तमर रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अछि तमर पॉजिटिव कांसेप्ट ऑफ इक्वालिटी रे ए आर्टिकल 16 रे भी अछि किछि रिजनेबल डाटा ए जो केस हेतला तमर जॉब को नै माने तमर जो कोटा सिस्टम को नै हैला देन क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व द रिजर्वेशन ऑफ द सीट और द वैकेंसीज द प्रिंसिपल एम ऑफ द आर्टिकल 14 and 16 is equality and equal opportunity. Equality and equal opportunity. Equality हमको किए देता है आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 हमको दूची equal opportunity of the job जहाँ भी सब देन द क्लॉज 4 तेणु तुम ये जो प्रति स्टेट समस्त को 50% जाए मैक्सिमम कोटा दे पारिबो बिहार रिसेप्शन 70% जाए दूची बट छाड़ बट आमर लॉ रे जोटा लिखा है कि प्रति स्टेट 50% जाए रिजर्वेशन तंकर लोकन को दे पारिबो आउटा लिखा है कोठी आर्टिकल 14 सब क्लॉज 4 रे लिखा है कि तुमको एमती कोटा मिलिबो बोली एंड आर्टिकल 16 इज ए मीन ऑफ द अचीविंग द वेरी सेम ऑब्जेक्टिव both the provision have to be harmonized and keeping in the mind the fact that both are restatement of principle of equality in article 14 कारण article 14 नु ये सब पावर डिराइव होइछि से जोटी कहि देला फास्ट टू दीटा कांसेप्ट जो उपाध्याय केस रे पॉजिटिव कांसेप्ट गोटे नेगेटिव कांसेप्ट गोटे तो जो टाइम में आर्टिकल 16 को आसिले इंद्रास्वामी केस तमे जानलो जॉब केस खाली को केस शॉर्टकट मन रखियो इंद्रास्वामी केस जॉब केस तापर तमरो आ कोन कहली मेनका गांधी केस तमर लिबर्टी केस लिबर्टी आर्टिकल 21 जोड़ दबो कारण से सब क्लॉज जते ओपनिंग हुए तमर इक्वालिटी ऊपर को सवाल आसे बुझि परछ तो तमन अंबानी हेतिबो माने अंबानी रो आई कार्ड को तम एंत रखि दबो बट आई कार्ड को कहीं रखा हला सबुटी इक्वालिटी आसीबो माने बुझछन ए सब केस तो हे सिस्टम चलला आउ एटी किछि विशाखा गाइडलाइंस जो विशाखा गाइडलाइन तम सेक्सुअल हारासमेंट ऊपर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान इन 1997 द जजमेंट sought to enforce the fundamental rights of the working women जो माने काम करछंती अंडर 14 19 21 of the Indian Constitution the sexual harassment violates the fundamental rights of a woman of gender equality which is codified under article 14 तो तमरो जो सेक्सुअल हारासमेंट होउची कि जो मैं मान कर से भी तमरो आर्टिकल 14 अंडर रे जीवो मोर इक्वल भाई से काम करछि मो काम करछि मो पर का सेक्सुअल हारासमेंट हो तो मो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जीबी को केस को नहीं आर्टिकल 14 को नहीं जीवो 19 को भी नहीं जीवो 21 को भी नहीं जीवो तीन तीनटा क्लॉज रे ताको तीन तीनटा आर्टिकल रे ताको तमे केस दे पारिबो तापर से जो पोस्को एक्ट से जो पोस्को तो तापर तम से जो लॉ आईपीसी से जो तमरो को सेक्शन तापर से लागिबो हला And the court held that even though there is no express provision for the sexual harassment at the workplace under the Indian Constitution, it is implicated through these fundamental rights. एमती कोटी sexual harassment ना रे हमर fundamental rights है कोटी लिखा है आर्टिकल 12 टू नहीं 35 जाए कोटी sexual harassment ना रे कुछ भी लिखा है तो ये जो केस
विशाखा गाइडलाइंस आसला शुणी विशाखा गाइडलाइंस आसला से विशाखा गाइडलाइंस तुम जो मैंने वर्किंग वुमेन अच्छा सेक्सुअल हारासमेंट गुड़ा होता विशाखा गाइडलाइंस आसला इन 1997 कौटी सेक्सुअल हारासमेंट जेहतु लिखाइन ये लिखिदे कि आर्टिकल 14, 19, 21 तुम जब हनन हो तुम जब कटा हो तेन तुम केस दे पार कारण मो सेक्सुअल हारासमेंट जदि मोर आर्टिकल 21 इट इज माई प्राइवेसी इट इज माई लिबर्टी माने मो इच्छा भाई मोर सबू तो हाउ कुड एंड आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14 मत कहीं इक्वाली ट्रिट होनी जदि 10 टका दिखाई तो मत भी तो 10 टका देवा दरकार ना मत 8 टका कहीं दौच दैट इज द प्रोब्लेम ऑफ द इक्वालिटी दैट इज आवर इंडिया इवन इफ गोइंग ऑन माने सब बढ़ी बढ़ी जाइए तुम देखी दियो जितक सब तुम केसेस सब आसूची गवर्नमेंट खाली तुम मारिक देख जीडीपी को छाड़ी जीडीपी को छाड़ी तुम जितक जगह नंबर देख सब 3 डिजिट रे अच्छी है तुम से जो हैंगरनेस इंडेक्स होगा तुम से जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स होगा कि तुम से जो इनोवेशन इंडेक्स होगा कि तुम से जो कौन जोड़ा तुम ये 4th पिलार ऑफ द डेमोक्रेसी तांकर भी ये है तो अच्छे 160 150 पाखापाखि आम इंडिया जाइए अच्छे नंबर मैंने एत डेमोक्रेसी आम ये फ्री आम जो आम न्यूज फ्यूज गुरा जो देखा जो रिसेंट केस कारण से गवर्नमेंट एग्नेस्ट किसी दे पारे कारण पैसा से आसूसी से केमी छापे अच्छा तापर तापर आमर आसला कि आर्टिकल 14 इन द टर्म ऑफ डिफाइनिंग द जेंडर डिफाइनिंग पाई आर्टिकल 14 ने इन द केस ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा जो आसला 2014 ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस द नालसा ये केस रे कौन होता ना दिस केस वाज फिल्ड बाय नालसा कौन पाई टू लीगली रिकॉग्नाइज पर्सन्स हु fall outside the male or female gender binary including the person who identify as third gender while drawing the attention to the fact that transgender persons were subjected to extreme discrimination in all sphere of the society से जो तुम नालसा केसटा आसला मैंने तुम से थर्ड जेंडर उपर केसटा जो आस जान कनेक्ट करदेव नालसा कारण मुझे आर्टिकल 14 अंडर किसी जिन लिखुची एठू मत तुमको जिते कथा मुझे कहली ये तो मतलब प्रिलिम्स बेस इंपोर्टाट नुह बट तुम मेन्स तुमको ये ढेर सारा पॉइंट मिल खाली केस ना जान ना केस ना कौन होता एत किसी जिन जाना आवश्यकता वी आर नॉट लॉ स्टूडेंट्स एत किसी जिन डिस्क्रिप्शन पकईबन कि सारा मान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कौन कौन होता 10 मार्क भितर लिख सेमती केवे आसबनी जदि आर्टिकल 14 विषय किसी जिन आसला मुझे जानी कौन आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ आ तो कि जानी तो मुझे तुमको पॉइंट दूसरी कि सब पॉइंट ये सब केसेस गुड़ा आड कर पार तुम है दैट इज ऑल अबाउट आर्टिकल आउ सब जहाँ मत पचार क्लास है बट आर्टिकल 14 अंडर बेसिक जिन कौन दीटा बेसिक जिन तुमको कौन पढ़ेली मुझे जो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये दीटा जिन को भलसे बुझे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कन्फ्यूज लगे इक्वालिटी बिफोर लॉ माने मुंड को नहीं आसो कि इक्वालिटी आगे समस्ते सेम 5 जन सब सेम इक्वाल प्रोटेक्शन माने से लॉटा समस्त आगे ठीक ठाक अप्लाई हो तो जो मैंने सब माने स्टेट समस्त ऊपर आर्बिट्रारी होनी तो किसी डिस्क्रिमिनेट करूनी तो कारण स्टेट डिस्क्रिमिनेट कर पार कौ भाया रिजनेबल डिस्क्रिमिनेशन जमती कि किसी लाभ हो किसी फायदा हो जमती कि डिस्क्रिमिनेशन आम कोटा सिस्टम दिखाई एजाए मुझे तुम सीना कौच कोटा सिस्टम उठे मुझे चाहूँ उठू दैट इज नॉट ए बिग प्रोब्लेम बट एबे भी तुम देख तुम जब गोटे कास्ट बाहागर केस तुम आसो तुम गोटे कह कि मुझे बाहाबी एसटी कास्ट कि एसटी कास्ट एबे भी लोक माइंड रे गोटे एसटी कास्ट बाहाबू एससी कास्ट बाहाबू एमती थिंकिंग लोक माइंड रे अच्छी तो मुझे कहूँ कि पैसा से उठी सारे बट एबे भी लोक मान माइंड रु आम सब जिन बाहर कर पारि ना से सब जिन किसी ना ये सब जिन गोटे छोट छोट जिन स्टार्ट हो देख जाति कौटू स्टार्ट है जो माने ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैष्णव ये सब फास्ट होते भितर जो इंटरचेंजेस है ब्राह्मण क्षत्रिय जो इंटरमिक्स है नुआ कास्ट बाहर एमती कास्ट इंटरचेंज हो आज भाव लक्ष लक्ष कास्ट अच्छा कहीं गोटे कास्ट कहीं सब किए निजर कौन स्पेशल थी मैडम मो कास्ट एटा आम ये तो मुझे बनैबी ये सब मैंने किसी गोटे लिखाई मैंने एमती गोटे लिखाई तुम देखी खंडायत कास्ट एमती ये कास्ट एमती को लिखाई सब बाहर कर तो तुम जो नेक्स्ट जनरेशन बापा माँ हम कि जहाँ हम आटलिस्ट तुम तो एजुकेटेड हो जॉब न पाया एतिक तो तुम जापर ना कि मुझे नुह मु मो छुआ मानक ज्ञान दे पारि मुझे सब विषय ना कौन मो छुआ हो कारण मुझे जोटा स्टार्ट कली 20 वर्ष मुझे पारि छुआ बेलू दैट इज द प्रॉफिट पॉइंट ज्ञान कौटे वेस्ट जाए है तेणु पढ़िया सेमती जॉब न मिलू किसी असुविधा नहीं देन केसेस गला आर्टिकल 15 धर्म वर्ण निर्विशेष सब भारतीय कौन लिखला 5टा पॉइंट रेस कास्ट सेक्स
रिलीजियन प्लेस ऑफ बर्थ पूरा पॉइंट को डिटेलिंग लिखा दरकार जदि रेस कास्ट सेक्स बदलले मुझे आउ गोटे जिन लिखिदेवी कि धर छोट मोट रिलीजन को चेंज करके आउ गोटे टिकी चेंज करदेवी सैला पॉइंट होगा गोटे ऑप्शन चेंज तो से जो पूरा पांचटा जाक यू हैव टू रेस कास्ट सेक्स रिलीजन आ प्लेस ऑफ बर्थ ये पांचटा केस रे मु कहा को प्रोविजन करि परिबी नाही बा डिस्क्रिमिनेट करि परिबी नाही बट परमिसेबल स्पेशल प्रोविजन अछि वुमेन एंड द चिल्ड्रेन एससीबीसी तमर जो एसटीएससी देन ईडब्ल्यूएस जोटा कि तमर 103 अमेंडमेंट रे आसिला ये तमर आर्टिकल 15 अंडर रे एतिक जाक तमर रिजनेबल प्रोविजन अछंती कि आपन पाई तमे किछि स्पेशल करि पारिबो बोली अच्छा चंपकम दुर्योधन केस और इंद्रस्वामी केस देखा आम अच्छा आर के सबक्लज देखी दियो सबक्लज माने आर्टिकल 15 अंडर मु चाहूँ कि तुम जहाँ भी क्वेश्चन आसो यू हैव टू टैकल इन 360 वे आर्टिकल पड़गला आर्टिकल 15 अंडर से लिखिदेला कौन कि तुम इट इज द प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन सेक्स रेस कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ But Article 15 Clause 1 कौन लिखला the state shall not discriminate against any citizen on the grounds only religion race caste sex place of birth by मु काको discriminate करि परिबी नाही सब प्लस 2 कौन लिखला सब प्लस 2 लिखला no citizen shall on the grounds only of the religion plus any of them be subjected to any disability liability and restriction or condition with regard to जदि किसी स्पेशल जिनस आछि कि डिसेबल अछि तापर किछि हम रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगै पारिबा केमती जेमती सब प्लस 2 रो माने तार भी सब प्लस लिखाला ए कि access to the shop public restaurant hotel place of public entertainment ए भितर को भी तमे पसिबा पई काहाकू बारण करि परिबो नाही हला and the use of the well tank bath roads place public resort maintaining the wholly or partially and partly out of the state fund or dedicated to be use of the general public एमती किसी जगह अच्छी किसी शॉप अच्छी किसी पब्लिक रेस्टोरेंट अच्छी होटेल अच्छी किंबा एमती किसी वेल टैंक बाथ रोड जहाँ पर गवर्नमेंट रो किछि ना किछि पैसा लागी तमें से को वे भी ये जो रेस सेक्स कास्ट बाथ अनुजाई क्या भी तुम रेस्ट्रिक्ट कर ना कि तुम एठिक जाओनी बोली भाई तापर सब प्लस 3 तुमको कौन कहूँ नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फ्रॉम वुमेन एंड द चिल्ड्रेन ये कहला नथिंग इन दिस आर्टिकल ये सब आर्टिकल माने ये सब आर्टिकल जहाँ भी था ये मते वुमेन और चिल्ड्रेन मानक स्पेशल राइट दवा रखी पार ना इसे लिखीदेला से जो जदि कि केस आपको देदेव कि आर्टिकल 15 अंडर दे लिखाई तो आप कहीं देले से देखो कि आर्टिकल 15 ना क्लास 3 आम लिखिदेचु आर्टिकल जहाँ था आमर किसी टेंशन ना आमको वुमेन्स और चिल्ड्रेन मानक किसी स्पेशल प्रोविजन्स बाहर करार अच्छी है Then the Constitution, the First Amendment Act of 1951 made several changes to the fundamental right on a part of the Indian Constitution. It made it clear that the right to equality doesn't preclude the passing laws that give special consideration to the society's most vulnerable groups. And Article 15.3 was approximately expanded to prevent any special provision made by the state for the social, economical, and educational progression of any disadvantaged class of citizen from being contested based on the discrimination. माने ये कहूँ कि जदि को लोकर सोशल इकोनोमिकल एजुकेशनल प्रोग्रेस मते करार थी तो मते ये सब आर्टिकल एटा तो मोर आड है आर्टिकल फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 कि जदि कौन vulnerable ग्रुप अच्छी कि पिछड़ा ग्रुप अच्छी ताकू जदि मुझे आगू आने को चाहूँ आम सहित सेम करने चाहूँगी तो मुझे किसी स्पेशल ट्रिटमेंट देवी तार सोशल इकोनोमिकल एजुकेशनल प्रोग्रेस मुझे किसी स्पेशल ट्रिटमेंट देवी आठू मत स्टेट रखे पार माने लॉ रखे पार ना मुझे लिखि दूसरी आगुरी जमी तुम प्रोब्लेम न हो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कहूँ 5.4 कहूँ कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 जो आर्टिकल 29 देखिए ये क्लॉज 2 देखा एठू रिफरेंस देख आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 29 ना क्लॉज 2 इज रिलेटेड कौन पाई शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बट आर्टिकल 2 क्लॉज 2 जो तुम कहे आर्टिकल 29 ने दैट वन फॉर द माइनॉरिटीज ये कहे तुम बैकवर्ड क्लासेस एसटी एससी नथिंग इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज 2 of article 29 shall prevent the state for making any
स्पेशल प्रोविजन अंडर एनी एम्बेसमेंट जदि आर्टिकल 29 जो 2 रे लिखाई क्या माइनॉरिटी मानक तो से लॉ भी मत अटकई पार ना कौन करने किसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जब बैकवर्ड अच्छा जब मुझे आगू जाने को चाहूँगी तो सेठी मत कहीं भी अटकई पार ना ये सब सेक्शन 4 लिखा 5 लिखा कौन ना नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लास G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward class of the citizens for scheduled caste and scheduled tribe insofar as such special provisions related to their admission of the educational institution including the private educational institution है ये देख जो तुम ये जो छोट छोट सब लाइन को देखा दरकार इनक्लूडिंग द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बुझीपार तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 रे लिखिला कि स्टेट कौन सी ST SC बा जो मैंने बैकवर्ड होकर अच्छा से मना करी पारिबो नाही कोठू टू देयर admission to the educational institution including the private college जदि को प्राइवेट कॉलेज रे तुम देखिबो ए सब जिनस क्या धर एडमिशन दौ ना तुम कह कि ये तो स्टेट रो नुह कारण प्राइवेट कॉलेज ता पैसा ना तो ये मुझे केमती जाए केस लगेदेवी तेणु लिखिला से सब क्लास 5 रे कि एठी प्राइवेट स्कूल भी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आ अंडर रे जाउचंती तेणु जदि एमती किसी केस आसीबो एटा तो फंडामेंटल राइट बुझिपारछ ना तुम भी जाए PIL इश्यू कर दो कौन असुविधा हो then it is the minority educational institution referred to clause 1 of the article 30 हम देखिबा article 30 तल देखिबा clause 1 देखिबा clause 2 देखिबा सेठु हम रिलेट करबा ए जो article 15 ए जो पार्ट हम देखुचे से टाइम पढ़ला बेला को रिलेट करबा कि आ भीतर कोन एमती अछि जे कि से article 29 और 30 सहित आइदर कंट्राडिक्ट करूची नले सपोर्ट करूची अच्छा तमर पास्ट ए पांचटा जो क्लॉज बताओ ना क्लॉज 6 रे अछि नथिंग इन दिस article of article 19 and article 29 shall prevent the state from making से सब जिन लिखा है कि एनी स्पेशल प्रोविजन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अच्छा कि तुम इकोनॉमिकल वीकर माने सब ये जो आर्टिकल तुम कही आर्टिकल 6 टा तुम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस तुम स्टेट किसी ना कि करें तुम कौन सी भी क्लॉज ताको रखी पार ना है देन ये तो लिखाई कौन आउ कौन रेस रिलीजन ये तो सब जानी रिलीजन इट मीन्स नो पर्सन शुड बी डिस्क्रिमिनेट एगेंस्ट द बेसिस ऑफ द रिलीजन है छाड़ ये कौन पड़ो यहाँ सब लॉ केस ये तुम DP जो मध्य प्रदेश ए किसी इंपोर्टाट केसेस ना मो आर्टिकल 14 अंडर जब पढ़ो ये जो येटा तुमको देदेवी ये केसेस गुड़ाक सब केसेस तुम इंपोर्टाट नुह गुड़ा पढ़ोनी गुड़ा आम ये खाली आम आसिले क्लॉज गुड़ा देखिए क्लॉज 1 मन रहा क्लॉज 2 मन रही क्या मुझे पब्लिक जगह को जीवाई मना करी ना कौन लिखाई क्लॉज 2 रे ता भर ए रे अच्छी शॉप होटेल पब्लिक माने ये सब क्लॉज B रे अच्छी तोर टैंक वेल रोड्स पाथ ये सब जिन 3 रे से लिखला से भाया कि मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन्स फॉर द वुमेन्स एंड द चिल्ड्रेन अच्छा तुम फर्स्ट अमेंडमेंट आसीगला कहला कि से सोशल इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल प्रोग्रेस से माने काम करी पारिबो ताको कोनोसी आर्टिकल अटकई पारिबो नाही आर्टिकल सेक्शन 4 तुम कौन कहला कि ST SC मानक आगो को आनिबा पई मु जे कोनोसी भी पदक्षेप स्टेज नहीं पारिबी आ एठी मते आर्टिकल 29 क्लॉज 2 भी रखी पारिबो नाही आर्टिकल 15 क्लॉज 5 तुमको से कथा कहूँ कि जदि तुम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अच्छ देन तुमको किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तुम जब जाऊच तुमको जब कौन भी प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो तुमको जब एमती किसी फेस करा पड़ुची तो तुम कोर्ट में केस दे पार 6 तुमको से कथा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्लॉज 6 रहा एति 15 मोर देन जो एनफ तुम देख सारे UPSC है माने दैट इज द बेयर एक्टर कौन अच्छी या माने ये ही तुम बेयर एक्ट है कौन से जिनस गुड़ाक टी अधिका लिखाई था बट ये तुम आमेंडमेंट्स माने को कौड़ा सब कटी से सब तुम बेयर एक्ट जो पढ़ा अधिका जोटा कि आम दरकार नहीं बेसी बट जस्ट फॉर दी एति आमर को मोर देन एनफ ओके अच्छा ठीक अच्छे आर्टिकल 14 गला इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एटा आउ थरे करिया रिवीजन व्यस्त होना एंड आर्टिकल 15 गला जानिलो खाली थरे थरे मन रख देन हम रिवीजन क्लास कला बेले सब जाक पुणी गा भला तो इक्वालिटी इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हाँ जब तुम केसेस गुड़ाक देखा चाहो जी ए आर्टिकल 15 ने जो 2टा केस मुझे PPT रे देइछि
ए केसेस गुड़ाक पड़ोची टाइम ए केसेस गुड़ाक जब आम गोटे अलग पार्ट डिस्कसन करवा कारण सब पढ़ुची ना मुझे केसेस गुड़ा कह से पूरा गोटे लंबा लाइन हो कारण ये सब गोटे गोटे केस जानी जब गोटे गोटे केस भर बहुत सारा जिन थाए है तो सब केसेस गुड़ाक कहले टाइम हेनी आम ओनली यूपीएससी फर द थिंग जी दरकार आमको एंड इक्वालिटी इन दि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 कहला तो जान धर्म वर्ण निर्विशेष मु क्या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रु रखी पारि ना इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी इन दि पब्लिक सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर से लेकिन पब्लिक सेक्टर एंड रिजर्वेशन इन दि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट नो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जेतिक सब क्रिमिनल जो कॉन्सेप्ट रहा ये जेतिक सब एप्लिकेबल ओनली फॉर योर आर्टिकल 4 सॉरी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लिमिटेशंस कौन इंद्रस्वामी केस जो तुम 50% है प्रति स्टेट 50% जाए तुम दे पार कोटा से तुम कौ केस सेट होता इंद्रस्वानी केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया रे आमर सिस्टम है कि प्रति स्टेट चाहिए 50% जाए ही कोटा दे पार 50% रु अधिका कोटा दे पार ना है एम नागराज केस कौन देखीद टे देखी तो कहीं बेकार तुम छाड़ बंद कर आर्टिकल 16 तुम कौन कौच जान कौन कौच सप्लस किसटा देखीद आर्टिकल 1 सप्लस 16 सप्लस 1 आमको कौच देयर शाल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एता जान छाड़ आर्टिकल 2 कौन कौच सप्लस 2 नो सिटीजन शाल ऑन द ग्राउंड ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस ये अधिक लिखाई कौन लिखा रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंट और एनी ऑफ देम मी इनएलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड एगेंस्ट इन एनी रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ और ऑफिस अंडर द स्टेट माने स्टेट चाहिए तुमको माने एसबू जिनस तुमको डिस्क्रिमिनेट कर को केस रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ ये लिखा तुम आर्टिकल सप्लस 2 अंडर सप्लस 3 तुम कौन कौच nothing in this article shall prevent the parliament from making any law prescribing in regard to a class or a classes of employment or appointment to an office under the government or any local or other authority within a state or UT and any requirement as the residence within the state or UT prior to such employment or appointment कि जदि ये जो आर्टिकल क्या भी माने पार्लियामेंट को रखी पार ना क्या कि जदि कौन स्पेशल क्लास को किसी गोटे स्पेशल ट्रिटमेंट देवाक चाहूँगी ये आर्टिकल अटक पार ना हाँ ये लिखाला कि नो सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ जो अनुजाई क्या डिस्क्रिमिनेट करना बट सप्लस 3 रे से लिखिदेला कि हाँ पार्लियामेंट कर बट किसी रिजनेबल केसेस अच्छी किसी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अच्छी माने एमती को क्लास को सी उठा चाहूँगी क्या गोटे अपॉर्चुनिटी देवाक चाहूँगी तो पार्लियामेंट हाथ में अच्छी से दे पार तुम्हें जाकि पार्लियामेंट ना केस कर ना कौन लिखिदे आर्टिकल 300 लिखिदे कि कौन भी जिन पार्लियामेंट को रखी पार ना कौन से क्लास उपर स्पेशल प्रोविजन्स दबाको से भाया आर्टिकल 16 क्लॉज 4 नथिंग इन दिस आर्टिकल शाल प्रिवेंट से लिखिदेला बैकवर्ड क्लास जो मैंने अच्छा कि एसटी एससी जो मैंने अच्छा आमर गवर्नमेंट रिजर्वेशन दूसरी ताकू कहीं भी अटकई पारे ना नथिंग इन दिस आर्टिकल कारण यहाँ फंडामेंटाल राइट तुम सीना कौच कोटा उठेदेव तुम कोटा उठेला पूर्व फास्ट कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम तो कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्टर यहाँ उठा हाँ कौ पार्टिकल्स उठा यही पार्ट जो उठेदेव कारण एसटी एससी मान खाली गोटे पार्टे ना है कारण जब तुम केसेस को जीव जदि किए गोटे केसेस देदेला भी एसटी एससी मान बैकवर्ड क्लास मान खाली आर्टिकल 16 ना आर्टिकल 14 15 16 19 20 21 29 30 आर्टिकल 46 सबुटी अच्छी तो ता भितर पुणी सेक्शन भी अच्छी ना भाई तुम आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी तो चेंज हो भारतीय न्याय संहिता भारतीय शिक्षा अधिनियम से तो चेंज हो बट एसबू जिन से भी अच्छी है तो तुम एमती ना कि स्टेट उपर तुम स्टेट रिजर्वेशन दौर मैंने ता इच्छा से जे जाए उठाऊनी से तुम उठे पार ना हाँ अफकोर्स से गोटे 10 वर्षीय प्लान होता बट एवं पॉलिटिलाइजेशन हो सारा ना कारण सबू सीट बोल मोदी ठीक अच्छे भाई सी इज चीफ मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर बट सबू सीट को छाड़िया डरती मन रख तेणु सब ये सब जिन कि गोटे सेमतिया प्राइम मिनिस्टर जब आसो जी कि तार सीट कथा भावु न हि थिंकिंग फॉर दि स्टेट हुए तो करे आउ ना सब जिन माने उठा भारी कष्ट है
Nothing in this article shall prevent the state from making any provision, reservation in matter of promotion with consequently seniority to any class or classes of the post in the services on the state in favor of scheduled caste and scheduled tribe, and state are not adequately represented in the service under the state. आर्टिकल 4 तुमको आर्टिकल 16 क्लास 4 कहला रिजर्वेशन आर्टिकल 16 सब प्लस 4 ए कौन तुमको कि रिजर्वेशन कि तुमको जो प्रमोशन दि जाऊँ से प्रमोशन ने भी रिजर्वेशन माने ये जो तुम कोटा कल इंद्रस्वानी केस ना को केसटा गोटे हाँ ये इंद्रस्वानी केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया यहाँ तुम होता से तुम ये को लेकिन प्रमोशन को लेकिन माने तुम गोटे जिनस भाव हुए तो तुम गोटे पढ़ी आसी गोटे जब्रे सिस्टम तुम हो 2 वर्ष है आ गोटे नुआ तुम अगर आसो जी कि तुमको प्रमोशन नहीं कि तुमठू आगू जाइए सीनियर हो कि जहाँ भी हो सेटा सब लिखाई आर्टिकल 4A कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन बुझीपार तो ये सब जिन कौट लिखाई जाना दरकार कारण ये सब जिन स्किप करदेव आर्टिकल 16 एया लिखाई सब जानते भाई ता भितर जो जिन लिखाई जाना पड़ो ना ना मुझे सब जिन जानी मोर लाभ को अच्छा तुम से जो केसटा आम देखीदे कि एडिटोरियल कमेंट कौन लिखला कि द कॉन्स्टिट्यूशन इन द 77 अमेंडमेंट एक्ट 1995 broadened the reservation provision for the job promotion and encompasses individual belonging to scheduled caste and tribe. Since 1955, the scheduled caste and the scheduled tribe have access to the facility of the reservation in the प्रमोशन तो जो प्रमोशन ने जो रिजर्वेशन आसला तुमको पचारे जदि कौ केस रिलेटेड ये हूँ तुम इंद्रस्वानी केस ऑफ 1995 इज स्टेट दैट कि आमर प्रमोशन ने भी देख ये केमी जान कि आमेंडमेंट हो जोड़ाक देखो छोट ए भी लिखा जाइए से गुड़ाक कन्स्टिट्यूशन पूर्वर अच्छे जोड़ा कैपिटाल ABCD लिखा जाइए से गुड़ाक कन्स्टिट्यूशन पर आड होती आर्टिकल 4A 1995 आड है सब पर आड है से जो से लिखला 77 नंबर कन्स्टिट्यूशन आमेंडमेंट थ्रू रे आर्टिकल 16 क्लास 4 सब प्लस ए तुम आड है ओके आउ ये सब प्लस बी भी तुम ये आड है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी अनफुलफिल्ड वैकेंसीज ऑफ द ईयर व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर इन अकॉर्डेंस विथ देख एबे जो तुम रिजर्वेशन सीट गोटा फांका पड़ुची तोर OPSC एग्जाम तुम है OPSC एग्जाम तुम गोटे गोटे छुआ शुणी 18 20 बहुत कम मार्क रखिकी भी हिज ओएस ऑफिसर से सब जिनसर क्लास 8 लिखाई क्लास 4 सब प्लस बी तुम लिखा जाइए कि एमती जदि कौन केस आसूँ तुम जदि कोटा पूरण होनी रिजर्वेशन ने सीट फिलअप होनी तो तुम ताकू सीट फिलअप कराओ एट एनी कस्ट से तुम लिखाई आर्टिकल 16 प्लस 4 सब प्लस बी है এটা তোমার হয়েছিল কেবে না 81 নম্বর আমেন্ডমেন্ট সেটা কোণ 77 নম্বর আমেন্ডমেন্ট বট ক্লজ বিটা তোমার সব ক্লজ বিটা তোমার 81 নম্বর আমেন্ডমেন্ট মানে 81 নম্বর আমেন্ডমেন্ট অফ আক্ট 2000 এম টু protect the reservations for the STSC in the backlogging of the vacancy जदि किसी वैकेंसी एमती अच्छी तो ताको से जगह रिजर्व रखे ताको जल्दी फिलअप करा से जाऊँ जो 5 रे सेमती कहूँ कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल जो अफेक्ट एनी लॉ which provides that the incumbent of an office in a connection with the affairs of any religious or denomination institution or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion belonging to a particular denomination है सेठी कहूँ कि जदि तुम एमती माने तुम गोटे ये सब जिन तो जॉब केस रे रिलीजन केस रे भी तुम किए जब कार गोटे तार स्पेशल कौटू डिनोमिनेशन आसी गवर्नमेंट केस कथा कहूँ दैट इज फॉर दी गवर्नमेंट जॉब्स है किए गोटे तार पर्टिकुलर डिनोमिनेशन आसी कि तार किसी अलग सेमती रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अच्छी तार अफेयर को से हैंडल करुच्ची तो तुम तापर स्टेट माने ये आर्टिकल किसी अप्लाई हम ना है कारण सी तार रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने से सब जहाँ जहाँ करूँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दवा जब आम हिंदू रिलीजन विषय गोटे किसी अच्छी स्कूल से मुस्लिम बसिकी कौन करेंगे मैंने कारण से तो तुम जो बस मैंने गोटे मुस्लिम तुमको तो से रिलीजियस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पड़ो तो प्रार्थना अच्छी ये अच्छी कारण शिशु मंदिर तुम कौन फोर्सफुली हुए है गोटे रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल नुह शिशु मंदिर तुम देख जो छुआ धर मुस्लिम आमर जन मुस्लिम सांग था से तार माने आम प्रार्थना कला बेले से तार जा क्लास बसे माने प्रार्थना को आसेनी ताको फोर्स करा पार ना कि ता तू भाई का से सिस्टम ये हेनी पब्लिक माने तुम जदि को रिलीजियस वेदांत कॉलेज अच्छी जोड़ा पढ़ुं गीता कॉलेज गीता ही पढ़ाब से भाई
କ'ଣ କରାହବ ସେଠି ଆଉ? ତମେ କହିବ କି ନା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁସଲିମ୍ ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ିବିନି, ନ ପଢ଼ ତମେ ମାନେ ନ ଆସ, ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ସେଇଆ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତିଆ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏ ରହୁଛି ଯେଉଁଠିକି ତମର ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆ ହେଉନି, ତ ସେଠି ତମେ କୌଣସି ଏନି କେସ୍ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଏଇଠୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଭଲ କେସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ୱାନୀ କେସ୍, ଆଉ ସବୁ କେସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 2-4ଟା କେସ୍ ଦେଖିଦେବ ଯଦି ଆଉ ମୋତେ ଏଠି କିଛି ଛାଡ଼। ଦେଖ ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ଯୋଉ ତମର 10% କୋଟା ଲଗା ହଉଛି, ଏଟା ତମର जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2022। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 2022 रे 103 नंबर अमेंडमेंट थ्रू रे आम ईडब्ल्यूएस कोटा नेकी आसला। अच्छा, ये गला तमर आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 तुमको कौन कौन प्रोविजन ऑफ द अनटचेबिलिटी। एटा आमर कह कहल बी आर आंबेडकर गोटे स्पेशल रिक्वेस्ट थी। आंबेडकर एटा गोटे स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि आप गोटे स्पेशल आर्टिकल हवा दरकार कि तुम अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, प्रोविजन ऑफ द अनटचेबिलिटी। तुम जानी इट इज ए वेरी एब्सोल्यूट, तुम जो वे रे भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करूच यू आर गॉन। ओके, ता थ्रू तुम प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 दैट एनफोर्समेंट एगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 को खोलिक देखो ना, बास्ट कौन कि ये तुम आर्टिकल 17 को आसी गोटे जिनस प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1955 एनफोर्समेंट एगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कर माने गवर्नमेंट बाहर कर तुम जब अलग कास्ट बाहा हो 2.5 लाख टंका हो पार। आर प्रोस एंड कन्स भी अच्छे कि तुम आउ गोटे विकर सेक्शन को हुए तो 2.5 लाख टंकार माने जो कौन कर कि सी गोटे सेक्शन बोली ताकू जे बाहा हम ताकू 2.5 लाख टंका मत मिल, तो सी गोटे काटागोरी हो जाऊँगी। आउ गोटे तार माने प्रो हो कि तार पॉजिटिव पॉइंट हो कि ये सब जिन हो कि इंटरमिक्स हो, माने सब जिन जो लोक भितर अच्छी कि कास्ट रे बाहा हबुनी जा हबुनी तुमको से जो 2.5 लाख टंका दौरान खाली तुम तो अलग कास्ट रे बाहा है। तो ठीक अच्छे सब जिन से एत भी दलित नुहति जो मैंने कि बी आर आंबेडकर जो कूअरू पानी पिउले लोक मैंने जाती, जो रास्तार से चल पढ़ुले से रास्तार लोक जाती, स्कूल सब पछरे बसते सहित किए मिसती। इट द टाइप ऑफ हारासमेंट ये माने आम जदि फैमिली एमती करुँच किए तो कह दैट इज यू आर नॉट द टाइप ऑफ कि एटलिस्ट तुम जो नेक्स्ट जनरेशन आस तुम पुओ तुम ये तुम एजुकेशन गुड़ा नहीं थो विल गिव ए वेरी गुड गाइडेंस टू योर चिल्ड्रेन्स जोटा कि हुए तो तुम पाइन माने तापे बापा माँ को दोष दवा किसी भूल, कारण से टाइम कथा तुम भाव देश तो स्वाधीन होता ग्रीन रेवोल्यूशन से सब कथा भाव देश को स्ट्रेज रे थिला। एतिक भल है सी तुमको खुए पी आज बड़ कर ना से स्टेज रे तुम भाव पॉपुलेशन हाई थिला सबुआड़े भूख मरी ता भितर भी तुम स्ट्रगल करके आसी, तो सब दोष दवा नुह कि ना तुम मत पढ़ेलनि बोली मुझे जानी पार्ली। एटलिस्ट एबे तो पढ़ुच ना यार, ठीक अच्छे पढ़, कंप्लेन करा बंद करो यार, मैंने जहाँ होगा जहाँ हम आपको तापर करिया फोकस। तापर दी आउ गोटे सिस्टम आसाला प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एगेंस्ट दी एसटी एंड एससी स्पेशल कोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये एक्ट आसाला 1989, सेटा आसाला 1955। आउ गोटे तमर आसाला से आर्टिकल 17 अंडर दीटा एक्ट मन रख द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1955 एंड द प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 1989 प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एगेंस्ट द एससी एंड एसटी। तापर अबोलिशन ऑफ द टाइटल ऑफ कोर्स आर्टिकल 18 अंडर तुम लिखे एटा लास्ट छाड़दवा। आर्टिकल 19 तुम टाइम हेनी कारण बहुत बड़ हम आर्टिकल 19 टा। अच्छा, आज आम खाली जानले इक्वालिटी लॉ गुड़ाक, आम इक्वालिटी विषय कौन सब लॉ अच्छी रिलेटेड केस जानले तुमको देखदेली सब केसेस गुड़ा कौटी कौटी अच्छी तुम चाहिए क्लास पर जाकि देखिपार से जो सैट्रे मुझे लिंक पठेदेवी केसेस गुड़ा खाली केसेस ना लिखि दियो सब आर्टिकल अंडर सब जिन मन रखा दरकार नहीं। ये समय केस ये से समय केस ये केस ये बास ये बेसिक किसी कौन भर्डिक्ट देले केते जणिया बेंच बेंच किए किए थे जस्टिस सब किए किए थे केते जस्टिस ना जो मन रख तुम ये सब जिन पकाइबी जो जस्टिस ना लेख तुम बसिक प्रिलिम्स नुआ नुआ जे होते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ ठीक अच्छे। अबोलिशन ऑफ द टाइटल आम कौ भी एगेंस्ट रे राजाधिराज महाराज आगुरी लोक मैंने एमती जिन कहीं रखती मोदी सब बड़ बड़ फटो सब लगुच मोदी मोहन माझी सब बड़ बड़ फटो लगुच जो पूरा भुवनेश्वर आस एमोट सेमोट खाली फटो ही फटो थी सो कौन देखा चाहते मार्केटिंग ठीक अच्छे से जिन मुझे बुझीपार बट एम नुआ नुहति एम जो सब करुँच लोक देखिए कौन पैसा खर्च करुँच एम नुआ नुहति भाई ये पूरा हिस्ट्री आम चली आसी जो राजा अश्वमेध यज्ञ तुम हुए ये जो सब माने वाजपेयी यज्ञ तुम सब हुए राजाधिराज महाराज अंगरक्षक से जो सब तुम लगे टाइटल्स कौन पाई कि मु भगवान का संतान मु राजा मु आसी तुमको
ତମେ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଜା। ତ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଗ୍ରେଟନେସ୍ କିଏ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି କ୍ରିଏଟ୍। ମୁଁ ରାଜାଦି ମହାରାଜା ମାନେ ମୋ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାର୍କେଟିଂ କରିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ପଲିସି କି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଯାହା ହେଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ କନଫର୍ ଟାଇଟଲ୍ସ। ଷ୍ଟେଟ୍ କୌଣସି ସେଇଭଳିଆ ରାଜା ମହାରାଜା ଭଳିଆ ଟାଇଟଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନାହିଁ। नो ଆସେମ୍ପଟାସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫରେନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବି ଓନ୍ଲି ଭାରତ ରତ୍ନ, ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ କି ତୁମର କୌଣସି ଏକାଡେମିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା କି ତୁମର କୌଣସି ମିଲିଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା, ଏଠି ତୁମେ କରିପାରିବ। କି ଜଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ବାଲାଜୀ ରାଘବନ କେସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଦିଆଯାଉଛି ତାର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତୁମର ବାଲାଜୀ ରାଘବନ କେସ୍ ଆସିଥିଲା। ବାଲାଜୀ ରାଘବନ କେସ୍ ମାରିକି ଦେଖିବ। बट तुम आर्टिकल 19 जाए ये सब बहुत आर्टिकल 19 पढ़े टे लेंदी हो जिन कारण ये तुम अध घंटे जीव। आर्टिकल 19 अंडर 6-7टा क्लज अच्छी ये बहुत आमेंडमेंट आम देखा कंक्लूजन अच्छी तो ठीक अच्छे आपको ये था आज आर्टिकल 14 रु 19 भितर आ किसी कार डाउट अच्छी डाउट अच्छे खाली केसेस गुड़ाक मुझे कहली तो नॉर्मली तो तुम देखिला मुझे जानी सब थरक मन रुहे जो रिविजन बारंबार बारंबार रिविजन राति अधरे भी कहीदेले करिया रिविजन फास्ट थरटा तुम क्लीयर हो दरकार कि जिनस यही सब जिन क्लज अच्छी जिन देखा सहज बट जो टाइम क्वेश्चन आस इट इज ए भेरी टेक्निकल टर्म रे बुले दी पारे से जो तुमको सब आस्पेक्ट देखली कि यार सप्लोज भी अच्छी किंतु अप्रोच कर सब जिन केसेस भी अच्छी प्रति केस जगार प्रति आर्टिकल जगार केसेस गुड़ाक अच्छी सब केसेस आम पढ़ार आवश्यकता ना आम केस लिखार ना आम ओनली आर्टिकल ता रिलेटेड केस कि कहीं आर्टिकल 15 ए जो कैपिटल ए कहीं चेंज है ये सब जिन कहीं आड है आमको ये जानवर अच्छे कि पचर कौ आर्टिकल कौ केसटा था केते जणिया बेंच कौ जणिया बेंच एत गप आम जानवर किसी आवश्यकता नहीं है से सब जानले बहुत लेंथी हो कारण पॉलिटिक्स आहरी बहुत अच्छे तुम से जो पॉलिटिक्स आहरी अच्छी तार आर्टिकल आम फंडामेंटल राइट्स ही आउ केते क्लास जीव कह काली 19टा बोधे बहुत बिग हो 19, 20 और 21 यहाँ देखीद काली आर्टिकल 22टा टी लेंदी हो कारण से बहुत के 8-10टा खंडे बोधे अच्छी क्लज मैं तुम जो जेल जाऊँ तुम सब कौन रईट अच्छी बोधे 8-10टा सी क्लज हो काली आम देखा आर्टिकल 19, 20, 21 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कारण यूट्यूब बहुत क्वेश्चन आसे कारण आर्टिकल 21 बहुत केस तुम इंटरप्रिटेशन हुए कटिका लिखी देन सीना कोर्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बट ता भितर बहुत जिन अच्छी जमी आर्टिकल 19 अंडर कोटा कोटा अच्छी जोटा कि आर्टिकल 21 अंडर ना आर्टिकल 20 रे एमती कौ सब सेक्शन अच्छी जो कि तुमको कौन कि कौन पूर्वदंड तुम भोगी पार ना जो टाइम ल बाहर नाला से टाइम तुम कौन दोष दिहब ना ये सब तुम आर्टिकल 20 रे लिखाई अच्छी तो काली देखिए आर्टिकल 19, 20 और 21 तापर 22, 23, 24 गोटे दिन में 23, 24 बेसी बिग ना आउ 3टा क्लास जीव तुम खाली फंडामेंटल राइट्स उपर काली क्लासटा गोटे पहर दिन देखीदे 24 जाए नेक्स्ट आमर आर्टिकल 25 रु 30 जाए फंडामेंटल राइट्स ओवर तापर तोर आर्टिकल 31, 32, 34, 35 और 35 तो 36 डीपीएसपी आसो डीपीएसपी बेस टाइम जमा नबनी डीपीएसपी भितर एत भी जिन फंडामेंटल राइट्स तार बुझीगली मैंने डीपीएसपी से वाइज छाड़ हो आज क्लास ये था जहाँ डाउट मत पचार मैं नोट पोट तुमको सब देदेवी नोट कौन देवी तो सब थी तुम पाखे तथा देदेवी देखिए एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जब तुम लिंक पठेबी 8टा बेलू कर फाँका थी तो सर मु टिके पांका नथिबी सर मु रिकॉर्डिंग सुन देबी सर रिकॉर्डिंग अच्छा अच्छा ठीक अच्छे।